Hello everyone, myself Professor Priyanka Lote, Yuva College of Diploma Engineering and Technology from Civil Department. Today we will going to discuss about impact of jet, okay? And the weightage of this chapter is 8 marks. The content covered in this chapter is first one, impact of jet on stationary plate. Okay, there are various cases, means the plate is in stationary condition when plate is in incline, then if the jet is striking a flat vertical moving plate, or the impact of jet on incline moving plate. Okay, there are total 4 cases, means stationary plate, like stationary plate is fixed, then stationary plate is fixed but inclined, stationary plate is, then jet is moving but plate is vertical, and jet is moving but plate is inclined. Okay, plate is inclined or also moving also. There are total 4 cases. And the second content is impact of jet on curved vanes with special reference to turbines and pumps. Okay, so let us start with the introduction part. सो फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ जेट स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, सब लोग ने टरबाइन के बारे में सुना होगा. ओके, सो टरबाइन क्या काम करता है, टरबाइन के ऊपर ब्लेड्स लगे रहते हैं. तो जैसे ही टरबाइंस के ऊपर वाटर स्ट्राइक होता है, एनर्जी क्रिएट होता है. सो वही बेसिकली हम लोग एक छोटा सा पार्ट इम्पैक्ट ऑफ जेट में स्टडी करने वाले हैं. टरबाइंस के ऊपर जो ब्लेड्स होते हैं उसके साइजेस अलग होते हैं, उसका शेप अलग होता है. तो वो एक तो इंक्लाइन रहे के वर्टिकल रहे के, तो वही स्टडी हम लोग ये चैप्टर में करने वाले हैं. जब भी टरबाइंस के ब्लेड स्ट्रेट हो गए या इंक्लाइन रहेगी तो फोर्स कैसे एक्ट होता है टरबाइन के ऊपर. सो हम लोग ज़ीरो से लेके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिफरेंट केसेस पे. सो वहाँ डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेशन और फोर्स कैलकुलेशन. सो हम लोग एक सिंपल केसेस कंसिडर करके हम लोग फर्स्ट देखेंगे वर्टिकल पे, इंक्लाइन पे क्या क्या उसके इफ़ेक्ट और फोर्सेस को कंसीडर करना है. सो फर्स्ट हम लोग अभी देखते हैं कि पहले तो जेट मतलब क्या है, इम्पैक्ट मतलब क्या है, एंड टोटल इम्पैक्ट ऑफ जेट मतलब क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ जेट. जेट मीन्स द फ्लूइड स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम nozzle with a high velocity is known as fluid jet. Means, see, with the help of diagram I will explain you. This is a pipe, and in front of pipe nozzle is connected. Okay, so यहाँ से जो water आ रहा है, तो ये वाटर एक हाई वेलोसिटी से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. तो यही वाटर होता है हम लोग का जेट, उसको ही हम लोग बोलते हैं जेट. ओके, देन हाई वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी. ये हुआ हम लोग का जेट. ओके, नाउ हम लोग देखते हैं अभी व्हाट इज इम्पैक्ट. ओके, द एक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट कमिंग फोर्सफुली इनटू कॉन्टैक्ट विथ अनदर is known as impact. Or it can say when anything strikes on a particular height with any object is known as impact. Okay, so what is impact of jet. भी impact समझ में आया है, then jet समझ में आया. so अभी impact of jet मतलब क्या है, the force exerted by a fluid jet on a plate. The plate may be flat, may incline or curve, which may be fixed or moving. जो हम लोग ने 4 केसेस देखे वही है. मतलब क्या हो रहा है, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, सेम यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है. इफ देखो, if some plate which may be fixed or moving is placed in a path of jet, a force is exerted by the jet on the plate. ओके, यहाँ पे इन लोग ने फर्स्ट जो लाइन है 2 लाइन्स उसमें जेट बताया है. द लिक्विड कम्स आउट
in the form of jet from outlet of a nozzle which is fitted to the pipe through which the liquid if flowing under pressure. then यहाँ पे impact of jet मतलब क्या है explain किया है. now अभी ये impact of jet किस पे ऊपर बेस्ड है. यहाँ पे दो लॉ है. वन इज दिस फोर्स is obtained from Newton's second law of motion and from impulse moment equation. okay, ये दोनों पे डिपेंड है फोर्स. सो व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड मोशन. The Newton law of second motion, the rate of change of momentum is directly proportional to impressed force and take place in same direction in which the force acts. okay, ये है हम लोग का न्यूटन लॉ. सो न्यूटन लॉ मीन्स F is equal to m into a, that is acceleration and mass. okay, and next है impulse movement. okay, movement मतलब क्या होता है. movement मतलब इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. ओके, ये दोनों पे हम लोग का बेस्ड है क्या, फोर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट कितने केसेस है उसमें वो हम लोग देखेंगे. इन दिस चैप्टर द फॉलोइंग केसेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ जेट, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ प्लेट विल बी कंसिडर. कितने टोटल 6 केसेस है. ओके, आगे भी है जो सीरीज़ के वेन्स ऑफ सीरीज़ के ऊपर है, बट मेन देखते हैं कौन से. द प्लेट इज़ वर्टिकल टू द जेट. ओके, जब स्टेशनरी है तो वर्टिकल प्लेट रहेगा, इंक्लाइन प्लेट रहेगा एंड कर्व. ओके, देन जेट मूविंग है तभी प्लेट वर्टिकल रहेगा, इंक्लाइन रहेगा, देन कर्व. सो टोटल plate is vertical to the jet, plate is inclined to the jet and plate is curved. When the force is exerted by the jet on a moving plate, when plate is vertical to the jet, plate is inclined to the jet and plate is curved. Now next देखते हैं what is jet propulsion. Jet propulsion is basically depend on the impulse movement. Okay, so impulse movement हमने just देखा. Then देखते द जेट propulsion means the propulsion or the movement of the bodies such as ships, rocket, aircrafts, etc. with the help of jet. The reaction of jet coming out from the nozzle attached to the bodies is used to move the bodies. Now, account of Newton's third law of motion, every action there is an equal and opposite reaction. So the fluid coming out from the nozzle exert a force on the nozzle in the opposite direction. okay, ये है jet propulsion. now start करते हैं cases. तो first case है force exerted by a jet on a stationary vertical plate. okay, here it is a pipe which is connected with the nozzle. So consider a jet of water coming out from the nozzle and strikes the vertical plate. पाइप है, पाइप को नोजल कनेक्ट किया एंड नोजल से वाटर विथ सम वेलोसिटी फ्लो हो रहा है. कहाँ पे, ये प्लेट के ऊपर. प्लेट क्या है, यहाँ पे देखो फिक्स्ड प्लेट है. सो फिक्स्ड का सिंबल यहाँ पे बताएं. तो वाटर क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है किसके ऊपर, ये प्लेट के ऊपर. स्ट्राइक होने के बाद सम वेलोसिटी यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, सम वेलोसिटी यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है. ओके, सो इनिशियली जैसे ही नोजल से वाटर फ्लो करेगा एट सम वेलोसिटी तो V1 यहाँ पे कंसीडर होगा. बट V2 जैसे ही प्लेट पे स्ट्राइक्स होता है वाटर, यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. ओके, देन वो क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पे डिवाइड हो जाता है एक 90 डिग्री में. ओके, सो
v मीन्स क्या है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ जेट, देखो वेलोसिटी ऑफ जेट है। देन d इज अ डायमीटर ऑफ जेट, ये टोटल है हम लोग का जेट, ओके, जो पानी फ्लो हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, और ये वेलोसिटी है, d डायमीटर है जेट का। देन a is a area of x section of jet. Suppose we consider this section, so this is a area of jet. So how to calculate area of jet? A is equal to pi by 4 into d square, okay, pi by 4 into d square. Now the force exerted by the jet on the plate in the direction of jet means, what is force means? The rate of change of momentum in the direction of force. What is force? The rate of change of momentum in the direction of force. So how to calculate rate of change of momentum in direction of force? Means initial momentum minus final momentum upon time. Okay. So initial momentum means mass into initial momentum, final momentum means mass into final velocity अपॉन टाइम। सो यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म को एक साइड लेंगे और मास एंड टाइम को एक टर्म साइड में अलग से लेंगे। सो मास अपॉन टाइम इन ब्रैकेट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ओके। बी मास, मास यहाँ पे क्या है, ओके। सो मास इज इक्वल टू, हम लोग मास पर सेकेंड मीन्स सेकेंड को यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, टाइम, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का डिस्चार्ज हुआ, ओके। क्यू बोल सकते हैं हम लोग m, सो हम लोग यहाँ पे देखो लिखा है Q इज इक्वल टू AV और यहाँ पे डेंसिटी मास के लिए, ओके। सो रो AV, सो इनिशियल वेलोसिटी को क्या कंसीडर, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इनिशियल वेलोसिटी डेट इज़ v1 को हम लोग ने लिखा है v, कॉज यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है बट यहाँ पे आके वो स्टॉप हो रहा है वेलोसिटी, बिकॉज ये स्टेशनरी है, स्ट्राइक होगा आगे वाटर मूव नहीं करेगा। सो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ने यहाँ पे 0 लिखा, ओके। सो मास पर टाइम क्या होता है, डेंसिटी दैट इज रो AV, ये पूरे टर्म को हम लोग लिखते हैं रो AV, मास पर टाइम, इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस फाइनल वेलोसिटी इज 0। सो यहाँ पे Fx जो फोर्स कैलकुलेट हुआ है, कि वो क्या हुआ है, रो AV स्क्वायर। नाउ हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन स्टेशनरी प्लेट वर्टिकल। The water is flowing through the pipe with a nozzle at one end. The diameter of nozzle is 100 mm and the head of water at center of nozzle is 100 meter. Find the force exerted by the jet on a fixed vertical plate. Take coefficient of velocity as 0.95. What is given here, d is equal to 100 mm diameter of nozzle, then head of water at the center of nozzle given है 100 meter that is h, and coefficient of velocity given है 0.95. So how to calculate area of jet? Area is equal to pi by 4 into d square. So pi by 4 into d is given here 0.1 meter, so pi by 4 into 0.1 are square, so here we get the area 7.853 into 10 raised to minus 3 meter square, okay? So area यहाँ पे कैलकुलेट। नाउ अभी हम लोग को फर्स्ट मैंने आपको कभी भी बोला है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फॉर्मूला लिख के लेना है, साइड में या रफ वर्क में उसका फॉर्मूला लिखो और स्टेप बाय स्टेप याद करना है, हम लोग को रिमाइंड करना है कि क्या क्या हम लोग को टर्म्स चाहिए, कि
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये हम लोग ने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर, बिकॉज फोर्स कैलकुलेट करने बोला है। सो रो डेंसिटी वाटर का हम लोग को पता है, एरिया कैलकुलेट किया। अभी हम लोग के पास बचता है बी वाला टर्म नहीं है, मीन्स वेलोसिटी नहीं है, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है। तो हम लोग चेजेस का इक्वेशन यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज दिया होता तो डायरेक्टली हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन से करते, बट यहाँ पे ओनली एच गिवन है। सो आपको ये खुद को रिकॉल करना है कि कौन से इक्वेशन से हम लोग वी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी चेजेस इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे लिखा और वी को फाइंड आउट किया। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.95 गिवन डाटा है। देन 2 इंटू 9.81 जी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.81 इंटू एच इज 100। ओके, सो कैलकुलेट ये टोटल टर्म कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को वी कितना मिला, 42.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, भी यहाँ पे देखो सभी वैल्यूज़ हम लोग के पास है। सो रो इज 1000 फॉर वाटर, देन एरिया is 7.853 into 10 raised to minus 3 and V 42.08 का स्क्वायर। V क्या है, स्क्वायर में। सो टोटल टर्म कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को फोर्स कितना मिला है, 13,905.51 न्यूटन। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है। सभी जितने जितने केसेस है उसमें हम लोग फोर्स का इक्वेशन देखेंगे एंड न्यूमेरिकल में फोर्स कैलकुलेशन रहेगा। अभी ये क्या था, जेट जो था वो स्टेशनरी प्लेट पे, मतलब फिक्स प्लेट पे स्ट्राइक हो रहा था, इसके लिए वो सिंपल है। जब भी इंक्लाइन होगा तो इंक्लाइन होगा मतलब क्या होगा, उसके अंदर थीटा उसमें क्रिएट होगा इंक्लिनेशन की वजह से। ओके, सो अभी हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। व्हेन द इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट, फ्लैट प्लेट। सी यहाँ पे प्लेट जो हम लोग ने प्रीवियस में देखा सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इंक्लाइन प्लेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा क्रिएट हो रहा है। सो लेट अस कंसिडर अ जेट ऑफ वाटर which is coming from the outlet of nozzle fitted at the pipe and strike a flat inclined plate as displayed here in the following figure. V means the velocity of jet in x direction. Then d is the diameter of jet. D, what is D? Diameter of jet. A, what is A? A is the area of cross section of jet, means ये जो जेट है वो ऐसे दिखेगा। अगर ये सेक्शन यहाँ पे कट हुआ तो ये हम लोग को जेट सर्कल में दिखेगा। सो एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वेयर एंड थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट। थीटा इज द एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। अगर ये थीटा है, ओके, यहाँ से, तो ये क्या हुआ, तो ये भी अपोजिट वाला थीटा ही हुआ, अपोजिट एंगल। सो ये जितना थीटा रहेगा उतना ही ये थीटा रहेगा। नाउ लेट अस डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द प्लेट। द मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द प्लेट इज इक्वल टू रो ए वी। ओके, ऑलवेज याद रखना है इम्पैक्ट ऑफ जेट में मास per second is always रो ए वी। हर एक केस में ये मास पर सेकेंड आने वाला है। सो मास ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द प्लेट इज रो ए वी। वी कैन से दैट द जेट विल मूव ओवर द surface of inclined plate after striking the plate with a velocity equivalent to initial velocity, that is v. So we will determine the force Fn exerted by the jet on the plate in the direction normal to the plate. फर्स्ट अभी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम लोग डायरेक्ट
जैसे 90 डिग्री पे सपोज एक्ट हो रहा है, वो फोर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देन थीटा को कंसीडर करके, बिकॉज अभी आप लोग ने फोर्सेस को रिजॉल्व करना अप्लाइड मैकेनिक्स में देखा होगा। अगर इंक्लाइन फोर्स एफ है, ओके, सो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग ने अगर न्यूमेरिकल में देखा होगा तो फोर्स सबको यहाँ पे गिवन रहता है, बट यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल जो एफेक्ट है, ओके, ये हॉरिजॉन्टली जो एक्ट हो रहा है नॉर्मल टू प्लेट, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड देन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, देन एक्स डायरेक्शन में क्या और वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या एक्ट हो रहा है। ओके, सो ये है हम लोग का एक्स डायरेक्शन सपोज, और ये है वाई डायरेक्शन। अभी ये डायग्राम मैंने यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिया है। सपोज़ ये हम लोग का फोर्स है, और ये मैंने यहाँ पे ही बताया, ये अगर थीटा जितना एक्ट हो रहा है तो सेम उतना ही थीटा यहाँ पे एक्ट होगा। सो ये जो डायग्राम है ये मैंने यहाँ से लिया है, सी जो मैंने रेड से मार्क किया है। सो ये हुआ हम लोग का वाई डायरेक्शन, ये हुआ एक्स डायरेक्शन, और ये हुआ हम लोग का जो फोर्स जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले। सो हम लोग के पास ये वाला थीटा है, ओके, ये हम लोग के पास थीटा है। सो जहाँ पे थीटा होगा वो साइड पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कॉस थीटा। सो एफ वाई के जगह पे आएगा कॉस थीटा, और जब भी हम लोग एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तभी आएगा हम लोग के पास साइन थीटा। सो वही हम लोग अभी नेक्स्ट उसके कंडीशंस देखते हैं क्या क्या है। एफ एन इज अ मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। सो mass of jet striking per second into initial velocity of jet before striking in the direction of n, and final velocity of jet after striking the direction of n. Okay, so mass of jet per second m per mass per second means rho av into वेलोसिटी क्या होगा, अभी इनिशियल वेलोसिटी, अभी यहाँ पे थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी होगा v साइन थीटा माइनस ज़ीरो के एक्स डायरेक्शन में है, सो साइन आएगा, सो v साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी इंक्लाइन है, फिर भी यहाँ पे आके वो स्टॉप हो रहा है कि आगे फ्लो नहीं है, सो यहाँ पे v2 ज़ीरो कंसिडर करना है। सो Fn जो फोर्स है वो क्या हुआ हम लोग का, रो ए वी इंटू वी साइन थीटा माइनस ज़ीरो। ओके, सो अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो Fn फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। ओके, v2 नहीं है, ये v स्क्वायर साइन थीटा। नाउ द अबव फोर्स विल बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट। ओके, जो भी मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, one component in the direction of jet and second component in the direction perpendicular to the jet means fx and fy। ओके, सो अभी फर्स्ट हम लोग fx देखते हैं। अभी लिखने के दो तरीके हैं, आप लोग यहाँ पे इन्होंने fn cos 90 माइनस थीटा है, बट डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि थीटा अगर इस साइड है तो यहाँ पे हम लोग का थीटा एक्ट हो रहा है, जैसे वाटर स्ट्राइक हो रहा है प्लेट के ऊपर। सो ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये जो फोर्स है, ओके, ये फोर्स Fn ये हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो हम लोग Fx देखते हैं, मतलब ये वाला, तो Fx की तरफ क्या आएगा, मैंने बताया साइन थीटा। ओके, जो प्लेन पे थीटा एक्ट हो रहा है वो प्लेन पे हम लोग कॉस थीटा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कॉस थीटा, ये आप लोग ने अप्लाइड मैकेनिक्स में सभी रूल्स आप लोग ने पढ़े हैं, सिर्फ रिकॉल कर रही हूँ। ओके, सो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो Fx पे Fn साइन थीटा। सो Fn तो हम लोग ने फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है, क्या है, Fn रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। सो रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इनटू क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे साइन थीटा, तो हम लोग का टोटल इक्वेशन जो बना वो क्या बना, यहाँ पे Fx का रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
एंड एफ वाई की तरफ अगर देखेंगे तो एफ वाई की तरफ हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा। एफ वाई के लिए हम लोग को कॉस थीटा कंसिडर करना है। ओके, सो एफ एन क्या है हम लोग के पास, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और एफ एन मतलब एफ वाई की तरफ जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है वो एफ एन कॉस थीटा। एफ एन की वैल्यू तो पुट की हम लोग ने यहाँ से वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू अभी क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा। सो एफ वाई कंपोनेंट ऑफ एफ एन परपेंडिकुलर टू फ्लो वो हम लोग ने कैलकुलेट किया है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो जब भी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो फर्स्ट फोर्स कहाँ पे गिवन होगा, या हम लोग को ये जो इक्वेशन है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन। सो न्यूमेरिकल देखते हैं। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ diameter 75 mm moving with velocity of 25 meter per second strike a fixed plate in such a way that the angle between jet and plate is 60 degree. Find the force exerted by the jet on a plate in direction normal to plate and in direction the jet. Okay, so ये एंगल जो है, ये एंगल हम लोग के पास कितना है 60 डिग्री गिवन है, थीटा 60 डिग्री डायरेक्टली गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने रिजॉल्व करके फोर्सेस को बताया है। सो जो ये थीटा वाला एंगल है वो गिवन है कितना 60 डिग्री। ओके, so what is given here, d is equal to 75 mm, so मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.075 मीटर, v is equal to 25 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा is given 60 डिग्री। diameter is given here, so we can calculate the area of jet. A is equal to pi by 4 into d square. What is d? d is equal to 0.075 the square. So after calculating this whole term we will get the area is 4.417 into 10 raised to minus 3 meter square. now area मिला, then क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट, फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट एफ एन फाइंड आउट करेंगे, देन इन एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे एंड देन वाई डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो एफ एन हम लोग ने देखा कैसे कैलकुलेट करना है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। सो रो कितना है वाटर के लिए 1000, एरिया कैलकुलेट किया है 4.417 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर स्क्वायर, देन वी ऑलरेडी गिवन है कितना 25 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे 25 वी की वैल्यू पुट की एंड साइन थीटा, थीटा भी डायरेक्टली गिवन है 60 डिग्री। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस होल टर्म वी गेट एफ एन इज इक्वल टू 2390.77 न्यूटन। ओके, नाउ एफ एक्स एंड एफ वाई डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग के पास वैल्यू है। ओके, so fx is equal to fn sin theta and fy is equal to fn cos theta। देखो यहाँ पे fy is equal to fn cos theta, fx is equal to fn sin theta। ओके, सो fn हम लोग के पास कितना है 2390.77 और यहाँ पे सिर्फ हम लोग को sin थीटा का वैल्यू पुट करना है। सो ये कैलकुलेट करने के बाद fx मिला 2070.47। सिर्फ इन लोग ने वी और की जगह पे जो स्टेप दिया है वो क्या है, ये टोटल वैल्यू एफ एन लिखा है और ये साइन और ये साइन को मल्टीप्लाई किया है। जैसे प्रीवियस जो हम लोग ने जस्ट उसका केस देखते वक्त एफ एन देखा, एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते वो देखा, सेम वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। सो रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो, बट बेटर वे की एफ एन वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट करो एंड एफ एन साइन थीटा एंड
एफ वाई इज इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा। एफ एन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, फोर्स एक्सर्टेड, सो 2390.77 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, सो एफ वाई हम लोग को मिला 1195.38 न्यूटन पर न्यूटन। ओके, so if you have any doubt ask me in Monday lecture. Okay, thank you everyone, or you can message me also if you have any doubt. Thank you everyone.